Good morning, lovely children. Welcome in the virtual class of EVS. Students, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना आप लोग? वेरी गुड. रेगुलरली हैंड वॉश करते रहना है बेटा. सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और बच्चों हेल्दी डाइट भी लेनी है और अपने बड़ों का, अपने एल्डर्स का कहना मानना है और उनकी भी केयर करनी है. करोगे ना? प्रॉमिस? वेरी गुड. तो चलो आज की स्टडीज स्टार्ट करते हैं. Today we will continue our lesson number 6, that is preservation of food. हमने लास्ट 2 वीडियोस में स्पॉइलेज ऑफ फूड पढ़ा था कि कैसे फूड खराब होता है और फूड के प्रिजर्वेशन मेथड्स पढ़े थे. कैसे फूड को हम सड़ने से, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. Today we will do its exercise part, its summary part और आपका फेवरेट पार्ट एनिमेशन पार्ट देखेंगे. ओके और हमने क्या लाइफ स्किल सीखी इस चैप्टर से वो हम समझेंगे. ओके सो ओपन योर पेज नंबर 33. वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिमेंबर पार्ट. नाउ कम टू द समरी पार्ट. समरी पार्ट समझेंगे बच्चे. Germs grow on food kept in the open for few days. जो बेटा कीटाणु होते हैं वो फूड में ग्रो करते हैं अगर हम फूड को कुछ दिन के लिए बाहर रख दें. Germs make food unsafe and cause food poisoning. और बच्चों अगर जर्म्स लग जाए फूड में तो वो अनसेफ होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है वो फूड और फूड पॉइजनिंग हो सकती है उससे. फूड कैन बी प्रिजर्व्ड सो दैट इट लास्ट लॉन्गर एंड कैन बी यूज्ड लेटर. फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक के लिए यूज़ किया जा सकता है. फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड बॉइलिंग आर सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. और बच्चों हमने इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं. लाइक फ्रीजिंग जिसमें हम फूड को ठंडा करके प्रिजर्व करते हैं. ड्राइंग फूड आइटम्स को सुखाकर हम स्टोर कर सकते हैं. एंड बॉइलिंग उबाल के हम जर्म्स को, कीटाणुओं को मार सकते हैं. तो ये कुछ मेथड थे प्रिजर्वेशन के. How does food get spoiled? Let us understand with an example of bread. When we keep a slice of bread in the open for a few days, we find greenish, blackish growth or patches pop up on the bread. The slice of bread has been spoiled due to the growth of the fungi called mucor on it. If food is kept for a long time, germs start growing on it. The food starts rotting and is not fit to eat and harmful for our health. Eating spoiled food may cause food poisoning. The person suffers from stomachache, diarrhea, fever, and vomiting, including abdominal pain. Hence, fresh and clean food is important for good health. Food must be cooked properly to kill the bacteria and should be kept sufficiently hot after cooking to prevent bacteria from growing. Cooking makes food tasty, soft, and easy to digest. It also kills germs in the food which can cause diseases. How do we know that food is spoiled? Food can get spoiled due to presence of natural factors like air, water, and heat. Presence of white and greenish powder on fruits and vegetables indicates the spoilage of food. In frozen foods, spoilage is caused by keeping food at room temperature for a long period of time, which provides suitable conditions for the growth of bacteria and fungi. In canned foods, swollen top or bottom, an unusual smell from the can indicates that the food is spoiled. Bacteria and fungi grow well at room temperature and in the presence of moisture. To avoid spoilage, food should not be kept out of the refrigerator for a long time. This method is called cold storage. We can keep dry or non-perishable foods like pulses, wheat and sugar in airtight containers.
It protects the grains from insects. This method is called dry storage. Food preservation. We cannot preserve food forever, but we can prevent it from getting spoiled. The process in which the food materials are given a suitable treatment to prevent their spoilage is called food preservation. Food materials are stored for a longer period of time without getting spoiled. Different foods are stored or preserved by using different methods of preservation. Heating. Heating kills all food-spoiling bacteria and fungi. We heat milk to prevent it from spoiling. The boiled milk remains good for a long time. Drying. Many food items can be preserved simply by drying them in the sun. Drying is one of the oldest methods of preserving food. It reduces water content or moisture in food, and thus the growth of bacteria is prevented. Many vegetables like fenugreek leaves, cauliflowers, ginger can be preserved in our homes just by drying them in the sun. Cooling. Germs do not grow and multiply in the cold. So, food like milk, cooked vegetables, raw vegetables, and fruits are kept in the refrigerator. Fish and meat can be kept or stored in deep freezer for months. Hence, the items remain fresh and last long. Sweetening and salting. Fruits like mango, lemon and amla can be preserved in the form of jams and pickles. Salt and sugar remove water from food materials. This prevents the bacteria from growing and thus prevents food spoilage. Potatoes and bananas are preserved in the form of wafers by drying and adding salt as preservatives. By adding preservatives, some chemical substances like sodium benzoate and potassium metabisulfite are used to preserve juice, jams, jellies, and squashes. Besides these, mustard oil, vinegar, and spices are also used as preservatives. Canning. It involves the cooking of food items and storing in sterilized containers. Food sealed in tins can be kept at room temperature as long as they are not opened. Pasteurization. It is one of the modern and most effective ways of preserving food. This method is mainly used for making the milk germ-free. In this method, milk is heated at high temperature and then cooled quickly to prevent the remaining bacteria from growing. The milk is filled into sterilized bottles or polypacks. Advantages of food preservation. It increases the storage period of food materials. Now exercise part, tick the correct answer. Milk can be preserved by. Milk किस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है? कैनिंग, पॉस्चराइजेशन या एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. आपने सही ऑप्शन पर टिक करना है. सेकंड, ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज मलेरिया, फूड पॉइजनिंग या टाइफाइड. अगर हम खराब खाना, स्पॉइल्ड यानी सड़ा हुआ खाना खा लेंगे तो क्या हो सकता है? मलेरिया या फूड पॉइजनिंग या फिर टाइफाइड. थर्ड, different food items can be preserved by adding salt, sugar or both. तरह तरह के फूड आइटम्स प्रिजर्व करे जाते हैं सॉल्ट ऐड करके या शुगर ऐड करके या दोनों चीजें ऐड करके प्रिजर्व कर सकते हैं. तो आपने सही ऑप्शन पर टिक करना है. राइट ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्रू और फॉल्स है. सही सेंटेंस में आप ट्रू लिखेंगे और इफ इट इज रॉन्ग सेंटेंस देन यू विल राइट फॉल्स. फर्स्ट, वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. हम फूड को हमेशा के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते बट हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं. इफ इट इज ट्रू देन यू विल राइट ट्रू और if it is wrong sentence then you will write false. Germs do not grow on food kept in open for few days. Germs grow नहीं करते अगर हम फूड को
खुली हवा में ओपन में रख दें कुछ दिन के लिए। थर्ड, फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, फूड को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ इट इज करेक्ट स्टेटमेंट देन यू विल राइट ट्रू एंड इफ इट इज रॉन्ग सेंटेंस देन यू विल राइट फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, स्पॉइल्ड फूड गिव्स आउट डैश स्मेल, जो खराब खाना होता है बेटा उससे कैसी स्मेल आती है आपने यहाँ पर लिखना है। सेकेंड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड व्हेन दीज आर केप्ट इन, जो फल होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां होती हैं, वो खराब नहीं होती अगर हम उनको कहाँ रख दें, वो आपने यहाँ मेंशन करना है डैश में। थर्ड, सॉल्ट्स एंड शुगर्स रिमूव डैश फ्रॉम द फूड मटेरियल्स, सॉल्ट यानी नमक और चीनी क्या रिमूव कर देती है अगर हम उसको फूड में ऐड कर दें तो। फोर्थ, डैश डैश एंड डैश आर एडेड टू फूड टू डैश इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, हमें क्या क्या चीजें मिलानी चाहिए फूड में जिससे वो खराब ना हो, तो वो आप यहाँ मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज, आपने बेटा दो एग्जांपल्स बताने हैं फूड के जो प्रिजर्व किए जाते हैं इन द फॉलोइंग मेथड्स। कैनिंग से जो फूड प्रिजर्व किए जाते हैं आपने उनके नेम मेंशन करने हैं यहाँ पे। सॉल्टिंग, देन एडिंग प्रिजर्वेटिव्स जिसमें ऐड करते हैं जिन फूड्स में आपके उन फूड्स के नाम मेंशन करने हैं। एंड लास्ट इज ड्राइंग मेथड। ओके, ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड कैसे खराब होता है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। Then what methods can be used to preserve food, कौन कौन से methods यूज किए जाते हैं to preserve food, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड का संरक्षण करने के लिए। थर्ड, name 2 chemical preservatives, 2 chemical preservatives के नाम बताने हैं। एंड लास्ट इज what is pasteurization मेथड क्या होता है। एफ पार्ट, थिंक आंसर, हाउ इज पिकल अचार प्रिजर्व, पिकल यानी अचार कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कौन से मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। नाउ एक्टिविटी टाइम, इट इज ऑन पेज नंबर 34। कलेक्ट लेबल्स फ्रॉम जार्स कंटेनिंग पिकल्स, सॉसेस, केचप, जेलीज एंड वेफर्स एटसेट्रा। Write the names of the preservatives used. Paste these labels in your notebook. अब बच्चों आपको क्या करना है, आपके घर में पिकल्स के जार होंगे, सॉसेस होंगे, केचप्स होंगे या जेलीज या वेफर्स आप लोग खाते हो, चिप्स खाते होंगे, तो बेटा उसमें प्रिजर्वेटिव्स के नाम लिखे होते हैं, तो वो आपने लेबल्स कट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है स्ट्रॉबेरी जैम का, तो ये देखो ये लेबल है, यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स के नेम मेंशन होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं और फिर कट करके आपने कॉपी में पेस्ट करना है। नाउ वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, आपने बेटा इस चैप्टर से क्या सीखा। अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व्ड फूड्स एज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बेटा वैसे तो हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए तरह तरह के प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, बट बेटा हमें इनकी आदत नहीं डालनी है। ओके, हम कोशिश करें कि फ्रेश फूड खाएं, प्रिजर्व्ड फूड हमें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि इनमें तरह तरह के केमिकल्स डले होते हैं। ओके, तो ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क। राइट न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर इन नोटबुक, आपने साफ साफ हैंड राइटिंग में बच्चे न्यू वर्ड्स लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? हर साल बेटा 5 जून को इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? टू अवेयर द पीपल अबाउट द एनवायरनमेंट, हमारे लिए हमारा पर्यावरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्यावरण में क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। इकोसिस्टम मीन्स जहाँ
प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रह के एक दूसरे की लाइफ पर निर्भर करते हैं। ओके, तो हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना है। और ये सब हम काम कैसे करेंगे? यस, हमें प्लांटेशन करना है, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि बेटा प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ओके, तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होगी। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।